guys, welcome back to my channel, and this is Yash. I hope you all are doing good. And today I will be taking you to a beautiful journey of Shri Mata Vaishno Devi, as I'm here in Bangalore and I'm traveling to Jammu via Delhi. So my flight is at 7:15 a.m. in the morning from Bangalore to Delhi and from Delhi to Jammu. You can see the time, it's almost 3:10 a.m. My bags are all set for departure. So stay tuned guys, hope you're gonna enjoy this whole beautiful journey to one of the beautiful place on this earth, Shri Mata Vaishno Devi. Guys, before traveling make sure that you have registered online for यात्रा पर्ची. और अगर आपको ऑनलाइन यात्रा पर्ची के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैंने इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आई बटन में या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं यात्रा पर्ची के लिए. और आपको सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड ट्रैवलिंग और क्या सिचुएशन अभी है माता वैष्णो देवी पे, वो सारी आपको इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पर मिल जाएगी. सो यात्रा पर्ची कुछ इस प्रकार दिखती है और एक रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से आप 5 डिवोटीज तक की बुकिंग कर सकते हैं. मैंने ये बुकिंग पहले से ही कर ली है. सो अब हम अपने आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं. जय माता दी. सो गाइज, आई एम एट कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर. And before traveling, make sure that you have checked the state-wise COVID-19 regulation. As in Jammu and Kashmir, everyone has to undergo mandatory COVID-19 test, which will be conducted at airport. I am proceeding towards the boarding gate as the departure time is coming close now. So what an awesome morning, as we will be flying with this beautiful flying machine, Airbus A320 of Indigo Airlines. Guys, my onward flight is from Delhi to Jammu at 11:45 a.m. Going for boarding now. As you are aware that Jammu airport is a military base as well as a very sensitive area of India. So I will not film or shoot any video of landing at Jammu or in the vicinity of Jammu airport, as the safety of my country is my priority. These pictures shows that how beautiful was the route from Delhi to Jammu, as there was breathtaking view of snow-covered mountains of Himalayas from Himachal and Uttarakhand region. After landing at Jammu, COVID test and result took around 25 to 30 minutes. From airport, we took auto and reached Jammu bus stop. Post lunch, we took bus from Jammu to Katra. The bus fare was 80 rupees per person, and after crossing Jammu city, it took around an hour to reach Katra. The roads to Katra are very good, but if you feel uncomfortable traveling through mountainous region, then I will suggest you to carry some orange candies with you. Shri Mata Vaishno Devi Bhavan, including Katra, is located in the Trikut mountain region of Jammu. Trikut means 3 peaks. We reached Katra bus stand at around 5:45 p.m. The weather was very pleasant and surprisingly not that cold. Our stay was in Rashri Hotel. Room with 3 bed cost 500 rupees per night, and the hotel was very near to the Katra bus stand. Hello guys, very good morning from Katra, and it's morning 5:25 and we have started our trekking to Shri Mata Vaishno Devi, and I am with a group and I'll introduce each of them.
So guys, I was a little tired in the night and I slept early. So I'm really sorry I was not able to shoot that part. But now we are going to the Shri Mata Vaishno Devi temple, the Bhavan, and this video will be in Hindi and English both. So so that all the person can understand, and yeah, it will be fun. Guys, we are going to Banganga right now, and you can see the first view of आपके सामने है दर्शनी दरवाज़ा। यहाँ से श्री माता वैष्णो देवी जी की जो चढ़ाई है वो प्रारंभ होती है, और यहाँ एक चेक पॉइंट है जहाँ पे आपके बैग्स एंड आईडी चेक करी जाएंगी। कटरा से श्री माता वैष्णो देवी तक की जो चढ़ाई है उसका टोटल डिस्टेंस 13 किलोमीटर है। सो गाइस, अभी जस्ट बैग चेक कर लिया है एंड रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, एंड अब हम हमारी जो चढ़ाई है वो अब स्टार्ट कर रहे हैं। हमने चढ़ाई चालू कर दी है। टाइम अभी हो गया है 5:45 एंड जस्ट बी विथ अस गाइस, स्टे ट्यून्ड। अभी हम बाणगंगा पहुंच चुके हैं और आप चाहें तो यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। बाणगंगा जी की जो मधुर आवाज़ है वो बहुत मनमोहक है। बाणगंगा जी से आशीर्वाद लेने के बाद हमने अपनी आगे की यात्रा को जारी रखा। These are the prepaid rates for pony and other facilities. So guys, आप अभी देख सकते हैं काफ़ी सारी शॉप्स बंद हैं और धीरे धीरे शॉप्स ओपन हो रही हैं। Guys, I really want to thank Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board as well as Jammu and Kashmir government for providing all the facilities like paved roads, utility shops, water tap and much more throughout the route, which make our journey more comfortable as well as building so beautiful temples. आपके सामने प्रथम दर्शन चरण पादुका मंदिर है, जो कि मॉर्निंग 8 बजे ओपन होता है। जय माता दी। जैसे जैसे हम आदि कुंवारी के पास पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे कटरा का जो दृश्य है वो और भी सुंदर होता जा रहा है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप यहाँ से स्टेयर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मॉर्निंग का। एक साइड माउंटेन्स पे रेन होती हुई और दूसरी तरफ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कटरा। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितना कम क्राउड है अभी यहाँ पर, और पैंडेमिक से पहले यहाँ पे माता जी के भक्तों की भीड़ लगा करती थी। लेकिन इस बात की भी श्योरिटी है कि जैसे ही पैंडेमिक कम होगा या ख़त्म होगा तो यहाँ पर एक बार फिर से माता जी के भक्तों की भीड़ आनी शुरू हो जाएगी। और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है। अर्धकुंवारी मंदिर अब काफ़ी क्लियर दिखने लगा है। गाइस, वी आर अबाउट टू रीच अर्धकुंवारी, और उसके पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाना चाहता हूँ। लुक एट दैट। गाइस, इट्स रेनिंग हियर। The view is amazing, guys. Like, we took some snapshots at this beautiful place. So guys, we have finally reached अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं हम लोग, एंड
मैं अपने ग्रुप को ढूंढ रहा हूँ। लेट्स सी वो मिलते हैं तो फिर हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए। सो गाइस फाइनली एट अर्ध कुंवारी एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ऑसम व्यू है। मैं करीबन 15 ईयर्स बाद यहाँ पे आया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यू कैन सी द व्यू एट द बैक, बहुत ही सुंदर है और बारिश हो रही है यहाँ। आप मेरे हेयर भी देख सकते हैं, इट्स ऑल वेट, पूरे गीले हैं। एंड देखिए मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ आज फिर से। हेलो Once again. सो यू ऑलरेडी नो हिम, ही इज आकाश। आपने पुराने ब्लॉग्स में भी देखा होगा इन्हें। गाइस दिस इज द ब्यूटीफुल टेंपल ऑफ अर्ध कुंवारी। बहुत ही प्यारा मंदिर है, लेकिन अभी गुफा बंद है, मार्च में ओपन होगी एज पर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेंपल। और आप देख सकते हैं बहुत ही ऑसम व्यू। यही कमाल है माता रानी का, जो इतने ऊंचे पहाड़ों पे आज भी विराजमान है। Guys, the weather at Ardh Kuwari was really awesome. It was windy and rainy. और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए क्योंकि काफ़ी कम भीड़ थी। अर्ध कुंवारी टेम्पल की जो विशेषता है वो ये है कि जब भैरव जी माता वैष्णो रानी के पीछे पड़े थे तब यहाँ एक गुफा है जिसमें श्री वैष्णो माता रानी ने 9 महीने तक बैठ के तपस्या करी थी। अर्ध कुंवारी वर्ड में अर्ध का जो मीनिंग है वो है हाफ, और ये हाफ वर्ड यहाँ ये डिनोट करता है कि अर्ध कुंवारी पहुँचने पर हमने कटरा से माता वैष्णो देवी के भवन तक की हाफ डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है। सो गाइज इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस टू अवर ग्रुप। ही इज़ आकाश, इन्हें तो आप जानते ही हैं, एंड ही इज़ मिस्टर गंगा शरण पांडे। हमारे काफ़ी वेल नोन नेबर हैं, एवरी ईयर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते हैं। एंड ही इज़ मिस्टर राणा प्रताप, जो कि वापी से आए हैं, और ये उनके रिलेटिव मंजीत भाई। सो गाइज हमारा जो ग्रुप है वो एक्चुअली अराउंड 55 to 60 डिवोटीज़ का है, और कुछ डिवोटीज़ हैं वो आगे निकल चुके हैं और कुछ अभी अर्ध कुंवारी पहुंचने वाले हैं। ग्रुप के साथ ट्रैवल करने में बहुत आनंद आ रहा है, और जब ऐसे फ्रेंड्स हो, ऐसे साथी हो तो फिर वक्त का पता ही नहीं चलता। सो गाइज अब हम माता वैष्णो देवी जी के भवन की तरफ बढ़ चुके हैं। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आप देख सकते हैं माता जी के भवन जाने के लिए पूरा रास्ता खाली पड़ा है। बहुत सुकून और शांति मिल रही है इस यात्रा में, और मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आने वाले टाइम में फिर से लाखों में डिवोटीज आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, और इतने खाली रास्ते फिर कभी देखने नहीं मिलेंगे। और आपको जगह जगह पर काफ़ी मंकीज दिखेंगे, और ऐसा बोर्ड्स पे मेंशन होता है कि आप मंकीज को फूड आइटम्स नहीं दीजिए। पूरे ग्रुप के साथ यात्रा करने में बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हम माता जी के भवन के जितना करीब पहुंच रहे हैं उतना ही माता जी के दर्शन करने का एक्साइटमेंट अब बढ़ता जा रहा है। जय माता दी। सो गाइस आप देख सकते हैं माउंटेन पर नेट लगाए गए हैं
ताकि अगर लैंडस्लाइड के कारण कोई बड़ी रॉक गिरे तो ये नेट उसे होल्ड कर ले। आप ये जो ब्लू शेड देख रहे हैं, ये माता जी के भवन जाने के लिए न्यू रूट है, नया रास्ता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो रूट है ये थोड़ा सा इजी है, लेकिन आज के दिन मैंने किसी भी डिवोटी को इस रूट पर जाते हुए नहीं देखा। सो गाइस, आपको अर्धकुंवारी मंदिर से लेके श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन तक के लिए इलेक्ट्रिक वैन मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक वैन भी अवेलेबल है और इसका जो प्राइस है, इसका जो फेयर है वो 236 रुपीज़ पर पर्सन वन वे है एंड फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी अच्छी है। हेलीकॉप्टर फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम कटरा टू सांचीचक एंड द वन वे फेयर इज 1730 इंडियन रुपीज़ पर पर्सन। माता जी के भवन तक का अब जो डिस्टेंस है वो बस 3 किलोमीटर्स है और आपको जगह जगह पर ऐसे माइल पोस्ट मिल जाएंगे। गाइस, इस रूट पे इतने सारे ब्यूटीफुल व्यूज़ को देख के मुझे इतना रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैंने जर्नी जस्ट अभी स्टार्ट करी है। गाइस, माता रानी का जो दरबार है वो इतनी मेहनत और इतने हार्ड वर्क से सजाया जाता है। मुझे नहीं समझ आता कि कुछ लोग इस तरह से किसी पावन स्थल को गंदा क्यों करते हैं। सो गाइस, जो भी इस तरह से वॉल पर लिखते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप किसी भी पावन स्थल को गंदा ना करें, ऐसी हरकतें ना करें और इतने पावन स्थल की रेस्पेक्ट करें। थैंक यू। अब भवन की दूरी बस 2 किलोमीटर और। माता जी के भवन के प्रथम दर्शन। सो गाइस, अब हम माता जी के भवन के और करीब पहुंचते हुए आप जैसे देख सकते हैं जो रूट है वो माउंटेन की रॉक्स को काट कर बनाया गया है और यहाँ पर छोटे छोटे से रॉक्स और स्टोन्स गिरते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बैठना रिकमेंडेड नहीं। सो गाइस, अब हम माता जी के भवन पहुँच चुके हैं और यहाँ से प्रसाद लेने के बाद अब हम आगे दर्शन के लिए जाएंगे। गाइस, हमने जो प्रसाद लिया था वो 80 रुपीज़ का था। उसमें एक नारियल, एक प्रसाद का पैकेट, माता रानी की चुन्नी और मिश्री का पैकेट और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉइन निकला था। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर में फ़ोन्स, कैमरास, लेदर का कोई भी ऑब्जेक्ट, पेन, वॉच ले जाना अलाउड नहीं है। तो अब हम ये सारे थिंग्स लॉकर में जमा करने के बाद हम माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे। लॉकर फ्री ऑफ कॉस्ट है और करेंटली कोई रश नहीं है लॉकर के लिए। सो स्टे ट्यून गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि माता रानी के दर्शन कैसे हुए। जय माता दी। सो गाइस, हमारे माता रानी जी के दर्शन हो चुके हैं और मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इस बार कितने ब्यूटीफुल, कितने भव्य दर्शन हुए हैं माता रानी के। हम लोगों ने गेट नंबर 3 से एंटर किया और हार्डली 15 मिनट्स भी नहीं लगे माता रानी के मंदिर पहुंचने में।
और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी रश नहीं था। इस बार कोई धक्का मुक्की नहीं थी। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से माता रानी ने अपने दर्शन दिए और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जो एक मन में शांति थी वो हम वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा फील होता है मानो जैसे कि हम इस पूरे यूनिवर्स से, इस पूरे नेचर से कनेक्ट हो चुके हैं और अब किसी भी प्रकार की जो नेगेटिविटी है या किसी भी प्रकार के जो गलत विचार हैं वो हमारे मन पे हावी नहीं हो सकते। माता जी के भव्य दर्शन मिलने के बाद हमने अपनी आगे की जो यात्रा थी, आगे की जो जर्नी थी, जो कि श्री माता वैष्णो देवी भवन से भैरव बाबा तक की थी, वो जर्नी हमने स्टार्ट कर दी, वो जर्नी हमने प्रारंभ कर दी। और ये जो हमारी यात्रा है ये आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। और मैं माता रानी से प्रे करता हूँ, यही मेरी प्रेयर है माता रानी से कि वो हम सब पे अपनी ऐसी असीम कृपा हमेशा बनाए रखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप हमारी आगे की जर्नी जो है वो आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। एंड ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।